So today we are going to start a new chapter, that is demand supply offer curve and terms of trade, discussion in terms of trade. Okay. Our learning goal is to show how equilibrium price at which trade takes place are determined. Show how equilibrium price at which trade place are determined with the offer curves. Okay. Explain the meaning of terms of trade and how they have changed over time. Okay. So now we start with the introduction. Relative commodity price differences between two nations in isolation reflect the competitive advantage and forms the basis of mutually beneficial trade. तो इसका मतलब है the the price A minus price B explains tells us, let me make it an equal sign, tells us how much gain we can get from trade. When there is a trade, then the nations can do arbitrage, and in this way we can get advantage of consumer surplus कि जो चीज़ पाकिस्तान में महंगी पड़ रही थी, अगर इम्पोर्ट कराएंगे वो चीज़ अब सस्ती मिल जाएगी, जो पैसे बचेंगे उससे हम और ले सकते हैं, तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज करेगी और कंज्यूमर सरप्लस होगा. ठीक है. Can use partial or general equilibrium analysis to determine the equilibrium relative commodity prices at which take place. Next, we talk about that he's showing us an example. Suppose this is country A and it is producing an X commodity. Let me take highlighter. So it is producing one X commodity and the prices of X are in terms of relative prices, Px over Py. So economy में prices are higher because there can be many reasons कि उस economy की ability, ठीक है, the resources are different. ठीक है. और इस कंट्री में सस्ता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, वो कोई बहुत वजह हो सकती है. जब भी ट्रेड होगी तो क्या होगा कि मार्केट प्राइसेस दरमियान में आएंगे. सो वी फाइंड अ सेंटर पॉइंट बिटवीन P1 एंड P3 एंड वहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा इन द इंटरनेशनल कमोडिटी. ठीक है. यानी इधर वाले जो जो कस्टमर्स हैं उनको ये प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी कि ये सस्ती है, हम ये ले लेते हैं, और इधर वाले जो सेलर्स हैं इनको ये मार्केट नज़र आ रही है कि यहाँ महंगी बिकती है तो हम वहाँ भेज देते हैं. तो होगा क्या, इस इकोनॉमी में सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. और डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी. ऐसे ही है, देयर विल बी न्यू बायर्स which are coming from economy C, country 2, buyer from nation 2, and there will be less sellers which are going to nation 2. और nation 2 में क्या हो रहा है, यहाँ पे there are new sellers from nation 1. सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट हो रही है और डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रही है. ऐसे होगा. ठीक है. इंपोर्ट्स का मतलब क्या है कि यहाँ वाले कस्टमर का उधर वाले बायर के साथ कनेक्शन हो गया. तो इंपोर्ट्स को अगर सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे क्या होगा कि जी कस्टमर ऑफ नेशन 2 इज बाइंग कनेक्टिंग विद सेलर ऑफ नेशन 1. तो ही इज एक्चुअली डूइंग एक्सपोर्ट्स. तो एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है कि जी सेलर ऑफ वो, यानी वो जहाँ जो बात लिखी उसका ऑपोजिट, मतलब वही बात है कि ये देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन सेलर ऑफ नेशन 1. तो जब ये एक्सपोर्ट होगी तो यू कैन नोटिस कि मैंने जो इक्विलिब्रियम बनाया है वो जो दरमियान वाले इक्विलिब्रियम से मैच करके, तो रेदर देन बुक ने वो ये प्रोसेस दिखाने की बजाय दरमियान में बना के दिखा दी. सो व्हाट हैपन इज बिकॉज ऑफ ट्रेड द प्राइसेस विल कम इन द मिडल एंड दिस इज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ये किसी एक प्रोडक्ट की बात हो रही. व्हेन देयर आर, मैं उसको टाइप करता हूँ सो दैट यू कैन रीड इट. सो व्हेन देयर आर more sellers or buyers
in the market, the curve becomes flat, because now no single buyer, now a particular buyer or a seller will have less power to control the market prices. So जो दरमियान वाली कर्व्स हैं वो फ्लैट इसलिए हुई क्योंकि मार्केट में टेक्निकली सेलर ज्यादा हो गए, क्योंकि दोनों मार्केट जुड़ गई है ना, तो दोनों सेलर ऐड हो गए। इसी तरह दोनों मार्केट में बायर्स भी ऐड हो गए। सो इफ देयर इज अ गुड ट्रेड, then it means there is a homogeneity between customers in market A and customers in market B. So rather than we look at two different markets, we will observe that there is only one market, that is this market. Then he talks about the offer curves. So offer curves kya hoti hain? Let's discuss in detail, then we'll move forward. Offer curves, sometimes called reciprocal demand curves, introduced by the international economists Marshall and Edgeworth. They show how much of its import commodity a nation demands for its willing to supply various amount of export commodity. यानी ये कह रहा है कि जी अगर वो X को इंपोर्ट करना चाह रहा है तो उसके बदले कितने Y एक्सपोर्ट करने को तैयार है. It's like substitution between buying X from abroad and leaving the Y which was available here. यानी अब हमारे पास Y एक्स्ट्रा पड़े थे, उसको हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि हम उसके बदले बायर से X मंगवा लें. So it can be derived from production possibility frontier, indifference map and various hypothetical relative commodity prices at which the trade could take place. यानी इसको बनाने के लिए तीन चार चीजें चाहिए. एक तो कंट्री की कैपेसिटी हो कि वो, अब मैं इनके मतलब बता रहा हूँ, आगे तो बुक से ही पता चल जाएगा आपको. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है कि वो क्या क्या बना सकते हैं, यानी वाई जो उनके पास ज्यादा है कितना ज्यादा है. ठीक है. इंडिफरेंस मैप वो क्या बताएगा, उनकी प्रायोरिटीज, कि वो एक्स पसंद कर रहे हैं तो कितना पसंद करते हैं. ठीक है. सो मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ. प्रोडक्शन बताएगा दी प्रोडक्शन ऑफ वाई क्यू वाई ग्रेटर देन क्यू एक्स, कितना ज्यादा है. और इंडिफरेंस कब हमें बताएगा कंजम्पशन ऑफ वाई, कंजम्पशन ऑफ एक्स, नहीं कंजम्पशन में नहीं, यूटिलिटी लफ्ज आना चाहिए. सो यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ वाई, कितनी ज्यादा है. एंड वेरियस हाइपोथेटिकल कमोडिटी प्राइस, दैट इज पी वाई एंड पी एक्स. यानी 6 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं इसमें टू कैलकुलेट दिस ऑफर कर्व. ठीक है. Let's go to see the diagram. What it is doing is कि suppose market prices थी 1 by, इसने थर्ड फॉर्म नहीं यहाँ बनाई. अच्छा, मार्केट प्राइसेस थी हाफ. ठीक है. ये वाला केस, लेट मी सिलेक्ट इट. ये वाला हाफ का मतलब है कि पी वाई की प्राइस 1 है और पी एक्स की प्राइस है 2, यानी एक वाई के बदले 2x. ठीक है. और उसकी ये बजट लाइन, ये प्राइस रेशियो लाइन बनी. ठीक है. और वो मुल्क x ज्यादा बना सकता है और y कम है, लेकिन उनको y पसंद है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व उस तरफ को है, वो फ्लैट है, स्टीप कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व. तो जब प्राइसेस इतनी थी तो वो इतने y और इतने x कंज्यूम कर रहे थे. ठीक है. 55x एंड he has not talked about the number here. ठीक है. उसने कहा कि अगर प्राइसेस 1/2 से 1 हो जाए, 1/2 से 1 होने का क्या मतलब है कि अब एक्स प्रोडक्ट भी महंगा हो गया. ठीक है. तो जब एक्स प्रोडक्ट महंगा होगा तो क्या होगा, वो एक्स प्रोडक्ट महंगा बेचेंगे और वाई ज्यादा खरीद लेंगे. तो ये बायर को चला, ये रोटेट हुआ, ये एफ से बी पे आया. ठीक है. और ये ऊपर चला गया. इधर एक पॉइंट और है जो उसने शो नहीं किया हुआ, दैट इज समवेयर हियर, इट्स ऑन ए पॉइंट लाइक दिस. मैं इसको सेट करके देखता हूँ, ये सेट हो सके. यस, इट्स समवेयर हियर.
जहाँ पे ए पे एक और इंडिफरेंस कर्व है, और वो कौन सा पॉइंट है, वो है PA1/4। आज जब प्राइस 1/4 होगी तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1y = 4x। y महंगा है और उनको y चाहिए, जी तो y महंगा है इसलिए वो अभी ज्यादा ऊपर नहीं गए। उनकी इंडिफरेंस कर्व, मैं कलर बदल लेता हूँ यहाँ पे, उनकी इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे है, ये ए पॉइंट पे, और इस पे वो 60y ले रहे हैं और 50x, ठीक है। जब प्राइसेस हो जाएगी 1/2 तो उसका क्या मतलब, 1y = 2x। जब जब y सस्ता होगा तो इसका मतलब है कम x देने पड़ेंगे ज्यादा y खरीदने के लिए, और उनके पास x ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो जो प्राइस रेशो रोटेट तो हुई, वो ए से एफ पे आ गई, ठीक है, और उसकी वजह से इंडिफरेंस का थोड़ी बाहर चलेगी। तो दे आर बाइंग मोर वाई बिकॉज वाई इज नाउ चीपर, सो दे कैन सेल मोर लेस। थोड़े एक्स दे के ज्यादा वाई ले सकते हैं, पहले 4x दे के एक वाई आ रहा था, अब 2 से आ रहा है। सेकेंडली, जब वो प्राइस हो जाएगी 1, so that is 1y = 1x, even though they are producing more x but they can get same amount of y। प्राइस रेशो बढ़ती जा रही है, बाहर जा रहा है क्योंकि y सस्ता हो रहा था। अब यही चीज उसने यहाँ बनाई है, उसने कहा है कि जब अब ये जो बजट लाइन है, इस पे उसने ये जो लाइन लगाई, दैट इज प्राइस रेशो लाइन। लेट मी गेट द पेन, यस, सो दिस इज प्राइस रेशो लाइन। पहले वो इस तरह थी क्योंकि वहां पे वो सबसे वो थे, व्हाट यू कॉल इट, इस तरह इसलिए बनी थी क्योंकि हमने उसको सब्सिट्यूट प्रेजेंट किया था। यहाँ पे वो एज ए सब्सिट्यूट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑफर्स ही हैं, या एक्स ले लो या वाई ले लो, इसलिए इसको ऑफर कर बोला। तो कह रहा है कि जब वो प्राइस रेशो 1/4 थी, तो ये जो ऑफर कर वो इतने, ये ऑफर कर रहे थे कि इतने हमसे ले लो और हमें उतने दे दो उधर से, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैल्यू, तो फिर जब प्राइस रेशो 1/2 हुई तो वो और ज्यादा हो गया कि जी हमें वाई ज्यादा दे दो, ये एक्स ले लो, ठीक है, क्योंकि एक्स अब वाई ज्यादा मिलने लगे। जब प्राइस बराबर हुई तो वो और ज्यादा एक्स देने को तैयार हो गए वाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि जी दीज 3 डॉट्स जो मैंने ब्लू में लगाए थे, मैं रेड कर देता हूँ उसको। These 3 dots are actually the offers that the country made to its neighbor। और ये वाई की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि उनको वाई पसंद है, क्योंकि ये डिफरेंस का वाई के पास थी, ठीक है। अगर उनको एक्स पसंद होता तो कैसी बनती, ऐसे। ये जो इसकी बेंडिंग है, ये उनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बेंडिंग की वजह से है। वो जितनी बेंड होगी ये उतनी बेंड होगी, इसलिए वो स्टार्ट में एक्स की तरफ को झुकाव करेगी, क्योंकि एक्स दे के वाई लेना है, और अभी एक्स सस्ते हैं, वाई महंगे हैं। जब वो एक्स को देता जाएगा, यानी ये बेंड क्यों हो रही है कि एज द ट्रेड मूव्स अलोंग they will export their X product, so X product will start to become expensive, क्योंकि वो उनके पास ज्यादा थी, वो एक्सपोर्ट करने लगे तो वो कम होना शुरू हो जाएगी, वो जो एक्सपेंसिव होगी। सो इट विल मेक इट easier to buy Y product with less X product। लेकिन सेकेंड लेवल पे जब वो एक्स दे चुके हैं तो उनके पास थोड़े हो गए, दे आर विलिंग टू गिव 40x, दे आर नाउ गेटिंग अराउंड 20y, क्योंकि आधी कीमत है, 40x दिए और 20y आए 1/2 की वजह से। लेकिन उनके पास एक्स और कम हो गए, अब एक्स महंगे हो गए उनके पास भी, और पूरी इकोनॉमी में दोनों मुल्कों में महंगे हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से जब जा रहे हैं तो वो खा भी तो रहे हैं, ठीक है। तो जब 60 पे गए तो दे आर एबल टू गेट 60 बिकॉज प्राइस वाज 1, कि जितने गए उतने आ गए। तो ये लाइन बेंड होती जाएगी डिपेंडिंग अपॉन दी शेप ऑफ दिस कर्व। आप यहाँ पे नोट करते जाएं, ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ये जो ई पॉइंट है,
ये रिलेट कर रहा है इस बी से, ठीक है। तो ये कंट्री बना रही है बी पे, दिस इज देयर प्रोडक्शन, दिस इज देयर कंजम्पशन, सही। बी पे बना के ये प्रोडक्शन पे बना कितना रहे हैं, 130x बना रहे हैं और 20y बना रहे हैं, बना रहे हैं वो 70 खा रहे हैं और 80y खा रहे हैं। तो कितने x देने को तैयार हो गए, 60। और यहाँ पे इनकी ऑफर होगी, ऑफर, और वो बना रहे हैं 20 लेकिन कंज्यूम करें 80, तो उनको ये चाहिए, ये उनकी है इंपोर्ट। यहाँ पे एक केस ये बना हुआ है, ये वाली एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ एक इंडिफरेंस कर्व बनी हुई है, ये ए वाली। तो ये ए की इंडिफरेंस कर्व बनी हुई है यहाँ पे ऐसी, जो ए से गुजर रही है। मुझे ये जो नेशन 2 है, दे आर प्रोड्यूस, अब यहाँ पे सारे पॉइंट में तेज तेज बताने लगा, ठीक है। एट पॉइंट ए their consumption of y is equal to production of y. At point A, their consumption of x is equal to production of x. सही। So this is at point A. This is before trade. ठीक हो गया, क्योंकि वो जितना खा रहे हैं उतना ही बना रहे हैं, उतना ही खा रहे हैं। सपोज y महंगा हो गया, तो ये कर्व रोटेट होगी और ये वाली लाइन बन जाएगी, ये वाली। पहले था पी एफ इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 4, अब पी एफ इज इक्वल टू 2 पे आ गया, यानी 2y इज इक्वल टू x हो गया, ठीक है। तो y सस्ता हो गया, तो अब क्या करेंगे, इधर से पता चलना शुरू होगा। मैं कलर बदलता हूं ताकि वो नजर आना शुरू हो। लेट मी टेक अप मैरून कलर। तो वो इतना y प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ y, ठीक है, और इतना x प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ x। लेकिन वो इतना y कंज्यूम कर रहे हैं और इतना x कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये फर्क है, ये है एक्सपोर्ट, और ये है यहाँ से जो फर्क नजर आ रहा है, ये है इंपोर्ट, और ये वाला पॉइंट ये h वाला बनेगा, ठीक है। देन अगर और सस्ता हो जाए तो व्हाट विल हैपन, आई विल चेंज अनदर कलर, लेट मी टेक अ डार्क ग्रीन। तो ये कंजम्पशन है और ये प्रोडक्शन बन गई, तो वो जो फर्क है वो 60-60 पे आएगा, ये पीपीएफ बन गई, ठीक है। वाई के पास पहले क्यों जाएगी, क्योंकि इस साइड पे ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में पी वाई वॉज लेस देन पी एक्स, वो सस्ता था, वो ज्यादा एक्स खरीद नहीं पा रहे थे, वाई ज्यादा देने पड़ रहे थे, एक्स कम आ रहे थे। इस रीजन में पी एक्स इज ग्रेटर देन पी वाई या इक्वल, ठीक है। तो वो कम वाई दे के एक्स ज्यादा ले रहे थे, तो इसलिए वो उधर को मुड़ना शुरू हो गया, वो एंजॉय करना शुरू कर लिया। So general relative commodity price with trade found at intersection of offer curves of two nations. यानी इक्विलिब्रियम कब होगा, जहां पे दोनों ऑफर कर्व्स इंटरसेक्ट कर देंगे। Only at this equilibrium price will trade be balanced. At any other relative commodity price, quantities import do not equal to the quantities of export, placing pressure on relative commodity prices to move toward equilibrium. So what it is trying to say that until relative prices equate, the trade will expand, it will stop stop growing when prices are equated. So what is happening is that for each price ratio line there is an indifference curve that is showing us a trade-off between imports and exports. And ये जो light blue line है, that is showing us the ratio of how much the imports they are willing to give, exports that they are willing to do for their imports. तो जब प्राइस रेशियो बढ़ती गई तो इंडिफरेंस कर्व ऊपर शिफ्ट होती गई। क्यों ऊपर शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि जो वो चीज खरीदने को तैयार थे वो सस्ती हो रही थी। So their indifference curve is moving up. So the indifference curve is moving up, and it is showing what, that their ability to buy
more imports from their exports. इसको हम टर्म्स ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं आज की टर्म में, लेकिन इस ग्राफ में इसकी और मीनिंग भी है, या टर्म्स ऑफ ट्रेड में और चीजें भी शामिल हैं. सो ये शिफ्ट होता गया, तो ये जो डार्क ब्लू लाइन है, इट इज एक्चुअली द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड द प्राइस रेशियो लाइन. ठीक है, सो इट मींस आई विल राइट इट हियर, the offer curve is the line joining the indifference curves and the price ratios between import and export commodity. ठीक है, तो इस तरह ये जो ऑफर कर्व है इस तरह बनी है. बैक एंड पे विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप. सो जब वो दोनों ट्रेड नहीं कर रहे, दे विल बी इन द जीरो. ठीक है, जीरो पे क्यों है? क्योंकि वो जितना बना रहे हैं उतना खा रहे हैं. देयर इज नो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी ट्रेडेड. जब प्राइस रेशियो चेंज हुई 1.4 और 1/4 और 4 से, तो वो एच और एच पे आ गए. एच और एच पे उनको पता चला कि वो ट्रेड होना शुरू होगी. जब ट्रेड होना शुरू हुई तो मार्केट प्राइसेस मूव होती होती प्राइस 1 पे आके यहाँ पे. सो ई इज अ पॉइंट. सो ई इज अ मार्केट इक्विलिब्रियम relative market equilibrium trade where the prices of X and Y commodity are equated. And why they are not stopping here? इसलिए नहीं स्टॉप हुए कि अभी भी प्राइस में स्कोप है. यानी फॉर अ कंट्री नेशन 1, उसको अभी भी लग रहा है कि जी वाई एक्स अभी सस्ता है. ठीक है, तो जब इनके पास एक्स सस्ता है तो वो दूसरी वाली नेशन खरीदने को तैयार है. तो वो खरीदेगी, तो जब तक वो सस्ता और महंगा खत्म होगा ना, अक्सर ट्रेड चलती रहेगी. फॉर एग्जांपल ये नेशन 2 है. नेशन 2 को पता चल गया कि उनका वाई महंगा है, उनको एक्स चाहिए. मतलब उनका एक्स महंगा है, वाई सस्ता है, तो उनको एक्स चाहिए. तो वो ये क्या करेंगे कि ये दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि जी हमारे पास तो एक्स महंगा है, उनके पास सस्ता है. सो व्हाई डोंट वी डू ट्रेड? सो जब वो ट्रेड करेंगे तो वो प्राइस 1 पे चली जाएगी. तो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज शोइंग द सेम थिंग. अब उसने क्या किया, वो जो पीपीएफ है ना, उनको भी एक ही क्वाड्रेंट में दिखाने की कोशिश कर दी, यानी क्वाड्रेंट इन्वर्स करके बना दिया. तो ये क्या शो कर रहा है कि जी जब व्हेन देयर इज एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, द नेशंस विल एंजॉय हायर कमोडिटीज. मैं उसकी पीपीएफ बना देता हूँ यहाँ पे. प्राइस रेशियो लाइन उसने नहीं शो की हुई. सो दे आर एंजॉइंग ट्रेड समवेयर हियर लाइक दिस. ठीक है, और सिमिलरली दूसरे नेशन भी इस तरह ही पॉइंट पे बैठी होगी, समवेयर लाइक दिस. तो मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ. यस, सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट this is nation 1 and it is producing this point. It is showing their production of X and Y, production of X and Y, and this point is showing their consumption of X and Y, and for nation 2 this point is showing production of X and Y in their country, and this is consumption of X and Y in their country. अब इन दोनों में जो फर्क है, अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लूं, ये जो फर्क है, ये that is actually being filled by this trade, and that difference is actually this much, 60 दोनों तरफ नोट कर लें. ये फर्क भी 60 है और ये फर्क भी 60 है, 60 और ये 60 और 120 ये भी 60 का डिफरेंस है. 40 एंड 100 ये भी 60 का डिफरेंस है. यानी both nations are exporting 60 units and importing 60 units. और ये यहाँ नजर आ रहा है. तो ये ऑफर कर्व को डिटेल से बना दिया. यानी हमने जब पढ़ा था तो हमने इस तरह ही बना था कि यहाँ पे प्राइस रेशियो लगा के एक साथ बनाया था. ठीक है, तो ये बुक में ये फिगर नंबर 4.1 देखेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन हाउ इट इज मेड एंड व्हाट इट इज एक्सप्लेनिंग. So this is the diagram of offer curve.
And what is happening here is that you can notice here that the for both cases, for both nations, the movement of indifference curve, मैं CIC लिख लेता हूँ, community indifference curve, away outward from A and A prime is showing the degree of gains that they enjoy. ठीक है, suppose their PPF is in such a way that nation 1 और nation 2 एक दूसरे से 3 दफा क्रॉस कर गए, ये B पे, A पे, C पे. So what will happen is कि जी इनके पास इक्विलिब्रिया, ये B A इक्विलिब्रिया स्टेबल नहीं है और B और C स्टेबल है. A क्योंकि स्टेबल नहीं है क्योंकि जब भी वो A से दूर जाएंगे ना, वो ये तीनों ग्रेविटी पॉइंट्स हैं. तो A से जब इक्विलिब्रियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि when we move away we go back, तो ये इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें ग्रेविटी है. तो यहाँ पे इसने डिस्कस किया कि ए पे अगर इक्विलिब्रियम आ भी जाएगा तो जब भी एक पॉइंट लेफ्ट या राइट मूव होगा तो या सी पे चला जाएगा या बी पे चला जाएगा. तो ए वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन बी और सी आर स्टेबल. So we talked about the general and partial equilibrium analysis. Both partial and general equilibrium analysis use production frontiers and indifference maps to find the equilibrium price and trade. Only general equilibrium analysis considered all the markets together. ये हमने पहले ही बताया था कि जनरल इक्विलिब्रियम में सारी मार्केट्स होंगी और पार्शियल में सिर्फ एक्स की बात हो रही थी. Changes in the market X affects other markets, which is possibly the impact of market for X. तो ये बता रहा है कि जी कोई एक प्रोडक्ट चेंज होगा तो बाकी इन्फ्लुएंस होंगे. इससे क्यों इन्फ्लुएंस होंगे, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि समटाइम्स गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स. तो अगर एक प्रोडक्ट कहीं डिस्टर्ब होती है या चेंज होती है तो इट विल चेंज दी अदर कॉम्प्लीमेंट्स एंड सब्स्टिट्यूट्स. So general analysis therefore required for more complete analysis. So next उसने बात किया कि जी पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस में उसने डिस्कस किया कि ये एक्स कमोडिटी है तो वो एक्सेस होगा तो सप्लाई कर देगा, यानी ये ट्रेड की बात ही हो रही है यहाँ पे कि वो पीछे ऑफर कर्व से ही लेके आ रहा है कि जब तक वो प्राइस 1 नहीं हुई तो सप्लाई डिमांड मैच नहीं करी सप्लाई, यानी एट relative price 1 the total demand which is DC1 plus DN1 plus DN2 is equal to total supply SN1 plus SN2. उसके बगैर वो दूसरी प्राइस पे वो सरप्लस और शॉर्टेज क्रिएट हो रहे थे, ठीक है. उसी डायग्राम में अगर हम स्टडी करें तो ये बता रहा है कि जी वो गैप क्रिएट हो रहा है. इज एक्चुअली टोटल कमोडिटी विच इज बीइंग ट्रेडेड. 60 उधर गया, 60 वहां से इधर आ गया, तो इक्विलिब्रियम में वो 60 से चेंज नहीं होगा, 60 जाता रहेगा, 60 आता रहेगा, वो ट्रेड करते रहेंगे. और जब तक वो 1 नहीं हो रहा तो कभी ट्रेड ज्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी. जब एक्सेस डिमांड होगी तो क्या होगा, एक्स महंगा हो जाएगा, पी एक्स और पी वाई है, और जब एक्सेस सप्लाई होगी तो एक्स सस्ता हो जाएगा. तो इस तरह यू विल नोटिस दैट प्राइसेस विल कम डाउन और गो अप एंड इट विल ट्राई टू स्टे एट 0.1. तो इसने वो ऑफर कर वाली डायग्राम को ही प्रोडक्ट वाइज बना के दिखा. दिस वाज द पार्शियल आउटकम ऑफ अ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. So terms of trade is the ratio of price of nation's export commodity to the price of its import commodity. पाकिस्तान कोई एक चीज एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहा, ठीक है. सो वी विल टॉक अबाउट दैट. एक्सपोर्ट कमोडिटी इज एक्चुअली देयर विल बी अ मार्केट बास्केट और उसकी वो प्राइस कैलकुलेट होगी जस्ट लाइक सीपीआई, और फिर इंपोर्ट कमोडिटी की भी बास्केट बनेगी और सीपीआई की तरह प्राइस कैलकुलेट होगी. और वो सीपीआई ऑफ एक्सपोर्ट, यानी इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स,
और इम्पोर्ट प्राइस इंडेक्स IPI हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड. So two nation in a two nation world in terms of trade, nation one is equal to reciprocal in terms of trade B. In a world where there are many traded goods in terms of trade, the ratio of export price index जो मैंने पहले बताया to the import price index is called commodity or net barter terms of trade. ये डाटा भी वर्ल्ड बैंक में मिल जाता है, net barter terms of trade. So if a nation one exports X and imports Y, the terms of trade is PX over PY, and P is the price index of X and price index of Y respectively. ये इसने बताया कि अमेरिका की relative export prices, अमेरिका के ये एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइसेस का टर्म्स ऑफ ट्रेड का डाटा है, ठीक है. तो ये शो कर रहा है कि हम रीड्रॉ द अबव ग्राफ्स और इसको लेटेस्ट डाटा तक बना के देखें. और हमारे पास तो डाटा 2018, सो ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन. इट शोज द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ G7 कंट्रीज. सो टर्म्स ऑफ ट्रेड बने हुए हैं, तो यू कैन नोटिस दैट नन ऑफ देम आर लेस देन 1, यानी किसी की भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा कीमती नहीं है. दैट्स वाई दे आर ग्रोइंग, कि वो जो चीज़ बेच रहे हैं वो महंगी है और जो खरीद रहे हैं वो सस्ती है. तो फार्मूला देख लेना, इट इज एक्चुअली P एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स. तो इट इज पॉजिटिव, इट्स मोर देन 1. दैट्स वाई दे आर अर्निंग फ्रॉम ट्रेड, ठीक है. फिर उसने क्या किया है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में ले गया है, इंडस्ट्रियल डेवलपिंग कंट्रीज. तो यहाँ पे नोट करें मेजॉरिटी का नंबर ऊपर है और ही इज टॉकिंग अबाउट एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. तो डेवलपिंग कंट्रीज में एशिया में काफ़ी बेहतर है, ठीक है. ये एशियन एवरेज है, तो एशियन एवरेज में चाइना आ जाता है, जापान आ जाता है, तो वो बाकी सबकी वैल्यू ऊपर करते थे. सो यू कैन कंपेयर इट विद पाकिस्तान. Hopefully you will have a view of what is the situation of Pakistan in the world. This was today's topic.